السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN، میں ہوں زین الحسن۔ میں ہوں ہدا شاہ۔ بلٹن میں ہمارے ساتھ دیں گے عرفان بشیر بھی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر سے مکمل یکجہتی کا اظہار، اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی۔ شریف نے دوحہ میں مسلم عرب ممالک کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اجتماعی دانشمندی سے اقدامات نہ کیے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اسرائیل کا قطر پر حملہ جارحانہ اقدامات کا تسلسل ہے۔ اسرائیل نے جارحیت کے ذریعے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل نے جارحیت کے بعد مذاکرات کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ غزہ میں انسانیت سے سک رہی ہے۔ انسانیت کے خلاف جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کی تجویز کے حامی ہیں۔ Pakistan strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha that was clearly aimed at sabotaging peace efforts in the Middle East. Was the return of hostages ever a priority for a country that has no respect or regard for human life? Qatar has consistently endeavored to bridge divides and promote the noble cause of regional as well as global peace. Injustice has reached an unbearable level. This must stop and stop now. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Fourth, member states should actively consider implementing other appropriate measures against Israel. قطر میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، فلسطینی صدر محمود عباس سمیت عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی جارحیت کی سختی سے مذمت کی اور اسرائیلی جارحیت کو مشرق وسطی کا امن تباہ کرنے کی سوچی سمجھی سازش قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں عرب اسلامی ممالک کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان، فلسطین کے صدر محمود عباس، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، تاجکستان اور مصر کے صدور سے بھی ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی جارحیت کی سختی سے مذمت کی اور اسے مشرق وسطی کا امن تباہ کرنے کی سوچی سمجھی سازش قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے مشکل کی اس گھڑی میں امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے پر سعودی ولی عہد کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی گہرے اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے مملکت کے مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم کے دورہ ریاض کے منتظر ہونے کا اظہار کیا، جو اس ہفتے کے آخر میں متوقع ہے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ قطر میں عرب اسلامی ممالک کے ہنگامی اجلاس میں اردن نے اسرائیل کو بھرپور جواب دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ عراقی وزیر اعظم نے اجتماعی سیکیورٹی کے لیے نیٹو طرز کا ماڈل اپنانے پر زور دیا۔ ترکیہ کے صدر رجب اردوان نے کہا کہ اسرائیلی حکام خون کے پیاسے ہیں۔ مصری صدر نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت تمام سرخ لکیریں عبور کر چکی ہے۔ دوحہ میں عرب اسلامی ممالک کا ہنگامی سربراہی اجلاس، اسرائیلی حملے بزدلانہ کھلی اور مکروہ جارحیت قرار۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیر قطر شیخ تمیم بن احمد الثانی کا کہنا تھا، غزہ پر جاری جنگ نسل کشی میں بدل چکی ہے اور اسرائیل جان بوجھ کر مذاکرات کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ ثالثی کی کوششوں میں اسرائیل کی ضد رکاوٹ ہے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ اسرائیل نے نہ صرف ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ ہماری قوم کے وقار کو بھی پامال کیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ غزہ میں جاری ظلم و بربریت، بیروت اور یمن میں پیش آنے والے واقعات پر مزید خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ مسلم ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ شاہ اردن دوم بولے، قطر پر حملے کا جواب واضح، فیصلہ کن اور مؤثر ہونا چاہیے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی جرائم پر ایک مضبوط اور عملی عرب رد عمل سامنے آنا چاہیے۔ عراقی وزیر اعظم نے اجتماعی سیکیورٹی کے لیے نیٹو طرز کا ماڈل اپنانے پر زور دیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا، اسرائیلی حکام خون کے پیاسے ہیں اور ان میں لالچی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ اسرائیلی حکام کو عالمی قوانین کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مصری صدر نے کہا، اسرائیلی جارحیت تمام سرخ لکیریں عبور کر چکی ہے۔
OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने मुतालबा किया कि इसराइल के खिलाफ सख्त और मुश्तरका फैसले किए जाएं। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गीत ने कहा कि आलमी बिरादरी को इसराइल को जवाबदेह बनाना होगा। और एशिया कप के हाई वोल्टेज पाकिस्तान भारत मैच के बाद मैदान की गर्मी अब इंतजामी सतह पर भी तनाज़े में बदल गई है। हैंड शेक न करने के मामले से शुरू होने वाली बहस अब ICC और PCB तक जा पहुंची है। PCB ने भारत को बरवक्त जवाब न देने पर डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला को उनके ओहदे से हटा दिया। आकिब कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। भारत की अनापरस्ती, खेल दुश्मनी, पाकिस्तान भी सीधा हो गया। गुज़श्ता रोज एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले गए मैच के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। भारतीय बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव की जानिब से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने के मामले ने एशिया कप को मुतनाज़ा कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने न सिर्फ मुतअद्दिद ट्वीट्स में वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बल्कि उन्होंने ICC और MCC को खत भी लिखा। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाक भारत मुकाबले के मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को मुअत्तल या ओहदे से हटाया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान आइंदा मैच खेलने से इनकार कर देगा। खत में लिखा गया कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने पार्टी का किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि हैंडशेक से भारतीय बोर्ड ने मना किया है और फिर कहा बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अलीपुर में रिलीफ कैंप का दौरा कर रही हैं और उनको रेस्क्यू से रिलेटेड ब्रीफ किया जा रहा है। तहसील है, इसको यहाँ डिफाइन किया मैडम इस स्लाइड के ऊपर। अब बेसिकली ये हेड पांचनाद है। हेड पांचनाद से जब पानी आया है रिवर चुनाव के अंदर, तो ये जो ब्राउन मैडम कलर है ये सारा हमारा कंटिन्यूअस बांध चल रहा है अलोंग इंडस एंड अलोंग चुनाव। बट ये पॉइंट था 3 किलोमीटर का जहां कभी पानी बाहर नहीं निकला, और इस दफा क्योंकि वेलोसिटी कम थी, हाइट ज्यादा थी, तो पानी यहाँ से बाहर निकला। सबसे पहली आबादी जो हमारी हिट हुई है वो बंद टूटा है। नेवर मैडम, ऊपर 212 किलोमीटर में से एक कहीं यहाँ पे नीचे आके मैडम एक बांध का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जब पानी यहाँ से आया है और इधर से रिवर साथ चल रहा था, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे जहाँ पे बंद नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, और 2 पॉइंट्स में 1000 फीट में यहाँ पे भी नहीं था। वहाँ पे हमने विजिट करके पार्लियामेंटेरियंस के साथ ओवरनाइट यहाँ पे काम शुरू किया, और 10 दिन में ये जो 2 गैप्स थे इनको फिल किया। वो फिल हो गए, मगर जब पानी इधर से भी चढ़ा और यहाँ से भी आ गया तो उसने सीपेज की, क्योंकि वो बांध की कंपैक्शन उस तरह से नहीं थी, नया बना हुआ था, तो वो पानी फिर यहाँ से उसने इनंडेट किया हमारे सीपकोट को। मैडम ये जो बात है ना, ये जो ये कह रहे हैं कि हुआ, ये 10-15 डेज पहले बता दिया गया था कि ये गिरा नहीं, तो इसकी फोर्टिफिकेशन नहीं हुई इस जगह की। इन्होंने कोशिश की लेटर कोशिश की, तो भट्टी गिरी थी, सस्टेन द प्रेशर कहीं ना कहीं तो हुई है ना। और अभी ये जो आपको मैप दिखा रहे हैं, इस पूरे मैप में जो ग्रीन एरियाज है ना मैडम, वो रेड हो चुकी है, ये ग्रीन भी नहीं है। ये मैडम यहाँ से जब वाटर नीचे को चला है तो नेचुरली इसने फिर ये वाला रास्ता इख्तियार किया और ये इनंडेट करता आया इस सारे एरिया को, और यहाँ पे आके इसने पॉन्डिंग की। अभी कुंदाई की क्या सिचुएशन? कुंदाई हम कल गए थे, ऑल इनंडेटेड सारा, ये अब कुछ भी ग्रीन नहीं है, इट्स ऑल रेड। और अब ये जो आप बंद देख रही है ना, ये पूरे ने इसको बचाया होता है, अदरवाइज सैलाब आता है। और इस पूरे पे अब आबादी है। ये जो पूरा आप ब्राउन एरिया बंद का देख रही हैं, और ये शहबाज साहब ने, ये मियां साहब ने 1988 में शुरू किया था इसका प्रोसेस, और ये शहबाज साहब ने इसको कंप्लीट, और अब जो गराजेस भी बने हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट में बने। अब जो एरिया में देख रहे हैं टेंट सिटी बनी है, तो ये अब आज हम जा रहे हैं इस एरिया में, और ये अब मसला ये कि जो ये वाला एरिया ना, यहाँ बोट भी नहीं जा सकता, ये बिल्कुल यहाँ बेड़ा भी नहीं चल सक रहा, और इस जगह पे भी बेड़ा चलना मुश्किल हो गया, पानी अब रिसीव कर रहा है, तो डेप्थ ऑफ वाटर नहीं है। तो अब वो कोशिश हम कर रहे हैं आमिर भाई के साथ कि हमें कोई तरीका बताएं कि जहाँ किधर हम पहुँचा सकते हैं चीज़ें, मगर ये चीज़ें जो है यहाँ पहुँच, और सीट जहाँ नहीं पहुँच रही वहाँ हेली से पहुँचाऊँ, हेली से पहुँचा तो सकते हैं, लेकिन हेली में भी ना हमने जिस तरह जलालपुर में कोशिश की थी ना, हेली इज़ अ वेट इशू, और वो फेंकता है, तो टेंट नहीं फेंक सकना, टेंट रखे जा सकते हैं मोदी में ना फेंके। और जो आपके वो जो है ड्रोन्स हैं, वेट कैरिंग ड्रोन्स, वो भी हमने टेस्ट किया था, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो एक सर्टेन हाइट पे जाते हैं देन दे लैंड। एक और चीज़ वो जो बताएं, वो सीतपुर कहाँ है इधर? सीतपुर, ये मैडम यहाँ हम गए थे। अब ये ना एक सीतपुर जो जगह, ये कंप्लीट आइलैंड बना, हाँ जी, इधर हम गए थे जहाँ उस दिन वो लोगों को राशन और आटा दिया, और ये जो आप देखिए ना, ये थोड़ा सा बचा हुआ, ये फैट प्रसादात, और वहाँ एक छोटी सी लाइन बची हुई जो पानी में नहीं, बाकी सब इट्स ऑल पानी।
ये सारा एरिया मैडम जो है वाटर में है। यहाँ अभी मुझे ये बताओ कि अभी यहाँ से कहाँ से पानी रिसीव कर रहे हैं? मैडम यहाँ पे जब पानी आया है तो ये 3 कट यहाँ डेवलप किए गए हैं, उसकी वजह से ये पानी निकला है। अब पानी पीछे 3,07,000 पे चला गया, तो ये जो दोनों कट्स हैं ये भी पानी को अब वापस दरिया में डाल दें। और इंडस का फ्लो इस वक्त कैसा है? इंडस का फ्लो डाउन है मैडम, उसको हेड में मिल रहा है तो वो और नीचे। सीएम यहाँ जब गए ना तो ये ब्रीच है जो मैंने किया, तो हम यहाँ तक जा सकें, फिर यहाँ से आगे अब जो है ना पानी कम है जिसकी वजह से मैंने देखा है ऊपर से रिसीव कर रहा था, लेकिन अभी भी इनंडेटेड है सारा, पूरे गांव कटे हुए हैं चारों तरफ। मैडम पानी रिसीव किया तो हमारी यहाँ पे जो कनेक्टिविटी रोड थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिकल डिवीजन ने शुरू कर दी। हमारी यहाँ पे 3 आए थे कट्स, जिसमें से 2 वो तो मैडम अभी टाइम लगेगा, खाना अभी राशन दिए बांध जो आपने ग्राउंड एरिया सुंदर सबको राउंड, और वहाँ भी 2600 हमने राशन दिए, लेकिन 5,000 आज जाएगा। जो आप पूरा ब्राउन देखिए ना एरिया, वहाँ किसी को टेंट किसी को सिर्फ कुंदाई वाला जानते हमने बस वो भी प्रोसेस में थे। तो अब आए हैं ना तो ये आज आए हैं। नहीं हमारे पास टेंट्स की कमी नहीं है, टेंट्स भी है, राशन भी है। राशन तो सी एस कल 29 मुझे पता आपने डायरेक्शन दिया तो भिजवा दिया, तो प्रोसेस अब शुरू है। इसी कैंप में हो सारे? खाना मिल रहा है और बच्चों का दूध मिलता है, कोई बात नहीं। रोटी किधर है? बाकी सारे नाम में पाएंगे, लेकर आओ ना, वो कैसे खाएंगे? लाओ सारी रोटियां रखें। क्या नाम है? मोहम्मद तैयब। इतना अच्छा नाम है। ये लो हाँ इधर भी दे रही हूँ। एक प्लेट और दे दो भाई। क्या हाल है? ठीक है।